Yes. Now next we want to see. So this is another experiment lined up. Previous experiment is telling about the physical nature of matter. इसके बारे में बता रहा है physical nature of matter. ओके और पहला चीज जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर व्हाट वेरी वेरी टाइनी. तो ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी और मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल. और ये दूसरा वाला क्या है, मैटर ऑफ स्पेस बिटवीन देम. तो पहला एक्सपेरिमेंट तो कर दिया पहले पॉइंट के लिए है ना, मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. दूसरा किसके लिए करना है कि कैसे मैटर इज वेरी वेरी टाइनी, दैट वी वांट टू सी. ओके now let's have a look. Yeah, particles of matter are very very how Tiny. Tiny. very very tiny. They are very tiny. And let's have a look now what properties they should exhibit. Yes, so we have one more activity for this. Who will read? Sir, can I assume? Okay, read. Yes. The particles of matter are very tiny. Activity. Dissolve 2 to 3 crystals of potassium. सर वो वर्ड नहीं दिख रहा है मुझे बराबर. Permanganate. Potassium permanganate. सर दिख रहा है. Potassium. Yeah, potassium permanganate. करो. Potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5 to 6 times. This shows that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. Okay, very good. So yes, tell me what you learned from this paragraph. क्या समझ में आया आपको? Who can tell? You can raise your hand. कि क्या समझ में आ रहा है आपको? What you are able to understand from this? Anyone else would like to speak? ये पैराग्राफ से क्या समझ आया आपको? Okay, yes, tell us me. Sir, in this they have told that particles have particles of matter. Particles of matter are very tiny, and because of it, they can color the water. But how this experiment is substantiating that point of particle of matter being very very tiny? That I want to ask. You said it correct. Sir, because the amount of water is more than the amount of potassium permanganate. So that's why it is taking the color of potassium water and getting lighter and lighter. That is okay. कम amount कम भी रहता तो भी चल जाता ना काम, क्या प्रॉब्लम है? If the amount Sir, of they have told that few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. okay, okay. Because they are in millions, means they have millions tiny particles in each crystal. तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले देखो क्या लिया हमने यहाँ पर 100 ml first we took. Okay, dissolve 2-3 crystals of potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker. तो यहाँ पर पहला वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड वाला बीकर, सबसे लेफ्ट साइड वाला बीकर जो आपको दिख रहा है वो क्या बता रहा है आपको कि 100 ml मतलब इट्स डार्क, ओरिजिनल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. करेक्ट ना? राइट, ओरिजिनल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. उसका क्या लिया मैंने, उसका 10 ml, 100 ml में से मैंने कितना ml बाहर निकाला? 10 ml. उसको किस में डाला अभी? 100 ml पानी में डाल दिया. तो क्या हुआ, कलर थोड़ा सा लाइट हुआ, फेंट हो गया. उसका मैंने क्या निकाला, 10 ml निकाला वहां से. उसको फिर से क्या किया, फिर से यहाँ पर तीसरे वाले इसमें
100 ml में डाल दिया तो कलर क्या हो गया? फिर से थोड़ा सा पेंट हो गया, करेक्ट। और आगे क्या कर रहा हूँ मैं? अभी इसको फिर से डाला और इसको फिर से डाला तो कलर आगे फिर से पेंट हो गया, है ना। इसका मतलब क्या कि पोटेशियम परमैंगनेट इतने टाइनी क्रिस्टल्स हैं कि वो 10 ml जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल निकाल रहे हैं और दूसरे पानी को जाके कलर करवा रहे हैं। वैसा ही ये स्टेप और प्रोसीजर रिपीट होते जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? these steps and procedures are getting repeated again and again. सर बोलो। सर अगर पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह इंक होता तो फिर ये प्रोसेस वर्क करता? करेगा करेगा करेगा, उसके भी टाइनी पार्टिकल्स है ना, इट विल डू। ठीक है, ओके so understood? Any doubt here? Anyone else? No, sir. No, sir. नहीं सर। सर ये लिखना है क्या? हम्म, सर हम्म, सर आज आप क्विज लेने वाले हो? वो सस्पेंस है। मतलब हाँ। अभी नहीं बताऊंगा मैं उसको, सस्पेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सर आप इसके पहले की स्लाइड एक सेकंड के लिए दिखा सकते हो क्या? तो पिछली बार किया था ना इसको। हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू सर। ठीक है, सर ये लिखना है ना अभी? हम्म, ठीक है, हो गया। नहीं सर, लास्ट में। Understood? Okay, now let's watch one video सर for आप this. इसका ये देने वाले हो पीडीएफ? Okay, दिख रहा है सबको? हाँ हाँ सर। Crystals of potassium in the first class. Study it well. अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था ना। We can see that potassium permanganate has given color to the water. सर वीडियो थोड़ा थोड़ा फ्रीज हो रहा है। नहीं सर, बराबर चल रहा है। वो फ्रीज हो, ब्रेक हो रहा है सर बीच में। स्टार्टिंग से दिखाइए। हाँ सर शायद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी दिख रहा है क्या अच्छे से? हाँ सर ठीक है। सर वैसे Permanganate तो वो and 6 glasses filled with water.
Add a few crystals of potassium permanganate in the first दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर glass. अभी ठीक Stir it well. We can see that potassium permanganate has given color to the water. Now put 40 milliliters of this colored water and put it in the second glass. We can see that even the second glass has got colored, though to a lesser extent. Similarly, continue adding equal volume of water from the preceding glass to the next one. If you see the glasses now, you will see that few potassium permanganate crystals were able to give color to a large amount of water. This is because potassium permanganate breaks down to individual particles when dissolved in water, and the fact that these particles can be distributed in large volumes shows that there must be multitudinous particles in the small amount of potassium permanganate crystals that were taken. Understood? Good grammar and spelling. हाँ सर सर Okay. That was our experiment. हो गया सबका लिख के वगैरह ये? हाँ पढ़ो इसको, क्या लिखा है? पार्टिकल्स। अभी तीसरा दिख रहा है हम लोग। पहला क्या दिखा हमने? कौन बताएगा पहला क्या था? सर हमने मतलब जो डार्क पोटेशियम परमैंगनेट लिया ना, उसमें से हमने ये 10 ml निकाला और जो दूसरे पानी के कंटेनर में डाला तो वो लाइट वैसा ही होता रहा और वो 5-6 टाइम्स हमने प्रोसेस रिपीट किया तो हमने चेंज ये देखा कि जो कलर है ना वो डार्क लाइट होते जा रहा है और इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स टाइनी है ना तो वो मतलब पूरा पानी का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सेकंड देखा हमने, करेक्ट, कि पार्टिकल्स टाइनी है। पहला क्या था? फर्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग एक्सपेरिमेंट? सर फर्स्ट हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल्स है ना, अगर मतलब शुगर और वाटर का सोल्यूशन देखा था हमने और उसमें हमने अगर शुगर या फिर आई थिंक सर सॉल्ट था ना वो। हाँ यस सर कुछ सॉल्ट भी ले लो। सॉल्ट का सोल्यूशन देखा तो सर हमने सॉल्ट को स्टर किया और उसमें मतलब सॉल्ट के पार्टिकल्स डाले वाटर के अंदर तो सर हमने ये देखा कि जो चेंज मतलब वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ क्योंकि वो जो वाटर के पार्टिकल्स है ना वो सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स मतलब भरे नहीं थे तो उसमें फिल हो गए वाटर के पार्टिकल्स। ओके, तो व्हाट इट इज शोइंग? व्हाट that इज is made up of सारे tiny particles. दैट इज मेड अप ऑफ? Matter is made up of tiny particles. हाँ, नहीं वो सेकंड हो गया। पहला प्रूफ क्या कर रहा था? व्हाट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रूविंग अस? Particles of matter are very tiny. वही No, फिर से sir, रिपीट मार रहा matter is made up of particles. नहीं, पहला क्या था? एग्जैक्ट क्या था पहला वाला? सर Matter is पार्टिकल्स made ऑफ up मैटर of ऑक्यूपाई स्पेस। हाँ, दे हैव स्पेस इन बिटवीन ना, वो था ना पहला वाला, हाँ सर। हाँ है कि नहीं? करेक्ट।
हाँ सर। अब ये क्या है बताओ? थर्ड वाला क्या है अभी? सर ये इसका मतलब है कि जो मैटर है उसके बीच में स्पेस होती है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है उन correct. सब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है। राइट. तो ये कौन सा था अपना? फर्स्ट था ना, है कि नहीं? फर्स्ट वाला बता रहा था कि स्पेस है, सेकंड वाला क्या बता रहा है कि पार्टिकल्स क्या है, बहुत टाइनी है कि नहीं? अभी थर्ड वाला क्या बता रहा है आपको? उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। हाँ सर, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है जिससे वो डिसॉल्व हो जाए। हाँ राइट. ठीक है. तो हैव स्पेस बिटवीन देम. So you see matter is made of particles, very tiny, and now they're having space in between. Okay. Okay. Can anyone read? सर Yes. सर कहना पढ़ो. ठीक है, पढ़ो. सर कहना है। तनिष पढ़ेगा. तनिष. यस सर. तनिष मेहता. हाँ सर, पढ़ता हूँ ना. पढ़ो Take some जल्दी. water in a beaker and note its level. Dissolve some salt or sugar in it with the help of a glass rod. The salt dissolves in the water, but the level of the water does not change. This is because the particles of salt get into the space between the particles of water. You're saying take some water in a beaker and note its level. कर लिया. Dissolve some salt or sugar in it and help. इसको stir करो. Salt dissolves, but level of water does not change because particles of salt get into space between the particles. So same. Correct. Na? It's the same thing which we had done for the first one. Okay. तो फर्स्ट वाला have space between them और फर्स्ट वाला क्या था अपना? और made up of particles. For both have the same experiment. Okay. ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट. आगे बढ़ेंगे हम लोग तुरंत. लिया सर. सर बोलो. सर मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया, तो सर आप ये इसका पीडीएफ भेजने वाले हो? शायद भेजा ना मैंने आपको ऑलरेडी. लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. प्रिंट स्क्रीन दबाना पड़ता है. विंडोज प्रिंट स्क्रीन. या मेरे इसमें तो सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाने पर भी निकलता है. यस, वेरी इजी. हो गया क्या? ले लिया? निकला क्या तुम्हारा स्क्रीनशॉट? सर मुझे समझ नहीं रहा कौन सा बटन प्रेस करूं. विंडोज प्रिंट स्क्रीन. PRT SCSYSRQ. बाकी लोगों से पूछो, एक्सपर्ट है सब लोग इसमें. मेरा विंडोज 7 इसलिए स्क्रीनशॉट ही नहीं निकलता। अरे मेरा भी विंडोज 7 है. प्रिंट स्क्रीन निकालना पड़ता है और फिर उसे सेव फाइल करना पड़ता है. या फिर विंडोज में जाके MS पेंट में नहीं करना पड़ता. तुम्हें MS पेंट में जाना ठीक है. पड़ेगा और फिर कंट्रोल भी दबाकर सेव करना पड़ेगा. एक काम करो बेटा, मोबाइल से फोटो निकाल लगे तो, नहीं तो मैं भेजने वाला उसको, है कि नहीं? ठीक है. सर आप प्लीज भेजोगे, मेरे यहाँ पे भी नहीं। हाँ मैं भेजते ही हूँ ना, हर बार भेजूंगा इसको. सर मैं निकाल. ओके. एंड दिस इज सेम ना, पहला वाला जो था वही सेम ही है, उसमें नया कुछ है नहीं वैसे भी. करेक्ट. लेट्स मूव अहेड नाउ. तो इज दिस आल्सो टेलिंग अस दैट कि हैव सम स्पेस इन, वो स्पेस है इसलिए शुगर के पार्टिकल्स को उसमें अकोमोडेट कर रहा है कि नहीं? Space is there, that's why it's accommodating other particles into it. Okay. Now next proof is what? Can you read what is next proof? Particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. Correct. Yes. पढ़ो इसको.
कौन पढ़ेगा? Sir, may I? सृजानी will read. Okay, sir. Take some water in a beaker and put a drop of blue or red ink slowly along the sides of the beaker. Leave it undisturbed for a few hours. The ink spreads evenly throughout the water due to the movement of the particles of water and ink. The intermixing of two or more different types of matter on their own is called diffusion. हाँ, very good, correct. क्या बोला? Intermixing of what? Ink and water. Or more different types of Two matter. or more different types of Matter. Matter. क्या कहते हैं उसको? Diffusion. दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. मतलब क्या ना, डिफ्यूज होना, मिक्स होना, मतलब डिफ्यूज होना. तो यहाँ पर क्या क्या डिफ्यूज हो रहा है बताओ? सर ink और Ink water. and water. Ink and water. हाँ, वेरी गुड. इंक एंड वाटर. एनी अदर एग्जांपल यू कुड थिंक ऑफ अराउंड इन द नेचर व्हिच कैन डिफ्यूज? Sir, color and water. कौन सा कलर? सर वाटर कलर जब हम पानी में डालते हैं तो वो डिफ्यूज होता है. ओके, ठीक है. एनीथिंग एल्स? ओके, कलर एंड वाटर, ठीक है. कलर एंड वाटर समझ गया. सर सर मैं बताना चाहती हूँ कि जो ब्लैक वाटर होता है उसमें डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, जबकि जो कोल्ड वाटर होता है उसमें डिफ्यूजन बहुत धीरे धीरे होता है. क्यों? सर मुझे क्यों नहीं पता, पर ये पता है कि होता है. फास्ट होता है, स्लो होता है, क्यों होता है? सर आई गेस गर्म होगा तो फिर उसके कोई फायदे होंगे ना. टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? फटाफट से वो सर Spread हो मूव जाएगा. करने लगेगा. स्प्रेड ऑन मींस टेम्परेचर इज मोर, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? सर रुको ना, बोलो. मैं क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी इज मोर और लेस? More. सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलो. हाँ सर, मोर. व्हाई? Sir, because it's hot and the temperature is also high. टेम्परेचर इज मोर, करेक्ट ना? Yes. So you see, temperature is more, that's why it has a random motion. It can run very fast, है ना? Correct. अब वेदांग पटेल को चटका लगा दिया, वो क्या करेगा? भागेगा तुरंत. भागेगा, है कि नहीं? हाँ सर. सर एक्चुअली मैं भागूंगा नहीं, वो मलम आता है, स्प्रे आता है, वो लगाऊंगा. अच्छा, हाँ. मलम लेने के लिए भागोगे? मलम लेने के लिए तो भागोगे ना, या कि जेब में लेके घूमते हो मलम हमेशा, चटका पड़ने वाला इसलिए? हाँ, उसके लिए भागूंगा. वेरी गुड. सर ये कॉपी करना है ना? तो क्या बोल रहा है देखो, ये क्या है? पार्टिकल्स हमेशा मूव हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर, वहां पर, राइट? ओके, लिख लो इसको. तो ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. तो स्प्रेड हो रहा है, दैट इटसेल्फ इज टेलिंग दैट पार्टिकल्स आर मूविंग. ओके, सर मुझे ये वाला नहीं समझा. क्या नहीं समझा? देखो, जैसे आप वो इंक को डाल रहे हो पानी में तो क्या होता है? इट स्टार्ट स्प्रेडिंग, करेक्ट? स्प्रेड होता है कि नहीं? वो सर स्प्रेड होता है या डिजॉल्व होता है? वो जो भी हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना कुछ तो.
इंक इज नॉट डिजॉल्व होना और स्प्रेड होना बहुत डिफरेंस है ना। हाँ तो इंक है ना, इंक क्या होगा, स्प्रेड होगा, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है। करेक्ट, यस और नो? हाँ कि ना? हाँ सर। क्यों स्प्रेड हो रहा है? क्योंकि जो बीच वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि पानी के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव हो रहे हैं, एक जगह पे नहीं है, वो मूव हो रहे हैं, इसलिए वो स्प्रेड हो रहा है। जैसे इंक डाल रहे हो उससे क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल मूव हो रहा है तो उसके साथ साथ वो इंक को लेके भी मूव होता है, नहीं तो एक ही जगह रहता है ना इंक। समझे क्या? Otherwise, ink would have just stayed at one place because water is always moving. What it will do is that it will move the ink also everywhere. Because ink also moves everywhere, it spreads everywhere. It spreads everywhere, therefore, everywhere it's visible what? Blue color is visible. समझा या नहीं? सर पहला जो था उसको समझा कि नहीं, बताओ। हाँ सर। सर इसका और एक एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं ना, पोटेशियम पर मैंगनीट और वाटर। पोटेशियम पर मैंगनीट और वाटर, हाँ लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, लिख सकते हो कुछ नहीं। ये किया हो गया कि किसी अब का करके या नहीं, अभी अब तक लिखे गए सब? डन। Yes, sir. पक्का? सर डिफ्यूजन हमेशा सॉलिड्स का ही होता है क्या? नहीं, लिक्विड्स और गैस में होता है। इंसेंस स्टिक का हो सकता है ना डिफ्यूजन का एग्जांपल, हाँ मतलब वो एयर में स्प्रेड होता है। करेक्ट करेक्ट, एयर में स्प्रेड हो रहा है ना, मिक्स हो रहा है एयर के साथ। ठीक है, ठीक। हाँ सर, हो गया लिख के। ठीक है, बढ़े अभी आगे। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो कितने अभी तक देख लिए हमने, टोटल कितने हो गए हमारे, देखिए। सर और 4। हाँ सर, कौन से फर्स्ट कौन सा था? सर मैटर क्या एनिमल्स? पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाइज। या सर बोलो। सर अभी आपने पिछले 5 मिनट में क्या बताया, आप रिपीट कर सकते हो? हमारे यहाँ पे की लाइट गई थी तो फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं ये यही चल रहा था, लिख रहे थे सब लोग, और कुछ डाउट्स थे एक दो जो पूछे, वो मैंने आंसर किए। ठीक है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया मैंने। सर मैंने एक बार बेसिन पे के जो भी ऐसे सामान, तेल साबु वगैरह थे, मैंने कुछ तो भी मिक्स कर दिया था और उसमें फिर इंक और कुछ उसे फूड कलर डाला तो एक अलग ऐसा सॉल्यूशन बन गया, अच्छा, एकदम अलग
तेल ऊपर से दिख कुछ नहीं दिखता था बस जैसे ये ब्लैक येलोइश कलर का सोल्यूशन है मतलब केमिकली लग रहा था। ओके, क्या मिक्स किया था लेकिन तुमने? पानी, तेल, साबुन, थोड़ा सा परफ्यूम, टूथपेस्ट और ऐसे ही कुछ तो मिक्स किया था मुझे अब याद नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ काम नहीं था लगता तुमको। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, गुड। ठीक है, हाँ, तो सब में अलग अलग केमिकल रहता है ना बेटा, तो इसलिए सब लोग मिक्स हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। एवरीवन हैज देयर ओन केमिकल्स, सो कलर चेंज। यस सर। हाँ Yeah, now this last one. What is last one? Particles of. Particles of matter attract each other. Why? Yes. Everyone hands down. Whoever raises hand first, he will read. Okay. हाथ नीचे करो. 3, 2, and 1. आदि मुठा. हाँ सर, take an iron nail, एक second. Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammer, cutting or stretching. It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particles in iron nail are held together with greater force than in rubber band or chalk. मैं नहीं समझा सर। तो इसमें से बता सकते हो कौन क्या क्या है यहाँ पर? सर पहला वाला आयन है, आयन नेल, दूसरा वाला रबर बैंड और तीसरा वाला चॉक। वेरी गुड, करेक्ट। तो क्या है, तीनों की तीनों सॉलिड है बच्चों, लेकिन क्या हो रहा है, even though all are solid, what is happening, everyone individually has some molecular force of attraction, है कि नहीं? तो लेफ्ट वाला जो देख रहे हैं आयन में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट, इसलिए जल्दी टूटता नहीं है। रबर बैंड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन क्या है, वीक है, मतलब उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, करेक्ट। और लास्ट क्या है अपना, Chalk. AgCl. लास्ट अपना है चॉक, करेक्ट। तो चॉक में क्या है, बहुत ही, इट इज ब्रिटल इन नेचर, चॉक इज व्हाट, ब्रिटल, इवन दो सॉलिड, लॉट ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन, इसलिए can you tell me any experiment to prove that in chalk there are a lot of spaces in between? Yes. और chalk porous होता है. हाँ, पोरस क्यों होता है लेकिन? Sir, it can be breaked easily. Okay, that I know, but I am asking that how I understand that forces are weak. सर चॉक को अगर हम ब्रेक करेंगे और वाटर के सॉल्यूशन में डालेंगे तो सर वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाए। ब्रेक करने के बाद बोल रहे हो क्या? नहीं, डिसॉल्व कहाँ होता है, चॉक कभी डिसॉल्व होता है पानी में? Dissolve नहीं होता, वो settle होता है. हाँ Sir, सर, it has holes inside it. Holes means what? There are lot of intermolecular spaces. क्या बोलेंगे हम उसको? There are lot of intermolecular spaces in between. That's why पानी डाल दिया तो चॉक क्या करता है, वो ऐसा पूरा गीला हो जाता है ना, जैसे आपका है ना, आप ये तो खाते होंगे, आप क्या खाते हैं आप, खारी और टोस्ट खाते होंगे ना, टोस्ट खाएगा, टोस्ट? हाँ सर। सर मैंने क्लास के पहले खारी खाई थी। इसलिए सो रहे हो अभी, समझ में आया मुझे, समझ गया मैं।
ओके, वेरी गुड। तो क्या होता है, वो जब खाते हो तो क्या होता है, ऐसे जब उसमें बुड़ाते हैं तो क्या हो जाता है, जल्दी नहीं निकला तो क्या हो जाता है, वो नीचे गिर जाता वो है। गिर जाता है अंदर ही, डिजॉल्व और वो बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ, तो वो डिजोल्व हो रहा है कि नहीं? यस। कुछ भी एक लगाऊंगा मैं कान में। dissolve नहीं सॉरी होता सॉरी है, नहीं होता, नहीं वो सर, dissolve नहीं डिसॉल्व तो होता, जस्ट वो गिर के एकदम सॉफ्ट हो जाता है, छोटे और उसका मॉलिक्यूल्स कलर भी थोड़ा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर क्या है, स्पेसेस है। देयर आर लॉट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन बिटवीन, करेक्ट ना? बहुत या ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होने की वजह से क्या होता है, वो उसकी वजह से सर जल्दी अंदर जो के जो सोक पानी कर है, लेता है। पानी है वो उसको सोक कर देता है, करेक्ट ना? इसमें चले जाता है पूरा, उसको सोक कर लेता है। टोस्ट और खारी पानी को सोक कर लेता है, लेकिन इवन बिस्किट के साथ भी अगर चाय में बिस्किट उबालने जाओ और बहुत देर रखो तो वो नीचे गिर जाता है। हाँ, बहुत बिस्किट खाते हो, समझ गया मुझे अभी, ये भी और एक तुम्हारा एक सीक्रेट पता चल गया। बस मतलब कभी कभी खाता हूँ, बहुत बार नहीं खाता। इसलिए तुम्हारे दांत में कीड़े हैं, मैंने समझ गया मुझे, है कि नहीं वेदांत? सर मैं रोज ब्रश करता हूँ 2 बार, मेरे दांत खराब नहीं है। ब्रश कितने भी बार 10 बार ब्रश करो, लेकिन जो बिस्किट और चाय खाता है उसके दांत में कीड़े हो ही जाते हैं, है कि नहीं? सर चाय को ऐसा मत बोलो, हमें स्कूल में हिस्ट्री में प्रोजेक्ट दिया है कि चाय बद्दल हिस्ट्री लिखो, आज सबमिट करना है। और ज्योग्राफी की और हिस्ट्री का ज्योग्राफी भी दिया है हमें प्रोजेक्ट में। चाय का हिस्ट्री लिखो ना, हिस्ट्री मैं तुमको हाँ, और बताऊँ, कहाँ कहाँ ग्रो हो सकता है और सब कुछ। मैं बताऊँ तुमको हिस्ट्री चाय का? Yes. हाँ? सर आप चाय नहीं पीते ना? नहीं, सर आप बताइए हिस्ट्री चाय की। चाय पता है हमको क्यों लाया गया था हमारे इसमें? चाय ब्रिटिश ने लाया था ये चेक करने के लिए कि यहाँ का सॉइल कैसा है, और वैसा नहीं, चाइनीज सॉइल चेक करने के लिए नहीं, ये तो हमको हिस्ट्री में गलत चीजें पढ़ाई जाती है। असल में हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सब बेवकूफ बनाया गया है हमको हिस्ट्री में पूरा। एक्चुअली हिस्ट्री वी आर नेवर टॉट ओनली। सर क्या है फिर बताओ ना। एक्चुअल हिस्ट्री इज दैट Britishers they were passing through India, right? And they tried for this tea in Indian market, correct? And once they were going, they saw that India there are a lot of if we can get somehow capture India, correct? Lot of benefit for our country. तो मैं क्या बता रहा था कि दो जो टोस्ट रहता है उसमें भी क्या रहता है, होल्स रहते हैं, स्पेस, लॉट ऑफ स्पेस। ओके, तो ये लिख लिया सबने ये वाला पार्ट। दिस शोज दैट इफ स्पेस इज मोर इन बिटवीन व्हाट विल हैपन, इट्स इजी टू ब्रेक इट। स्पेस इज लेस, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तोड़ नहीं सकते, आयन में क्या है, स्पेस कम है तो क्या हार्ड है, उसको तोड़ नहीं सकते आसानी से, लेकिन अंडरस्टूड या नो? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट। एनी डाउट टिल हियर? अभी पांचों के पांचों देख लिया हमने। हाँ सर। पांचों के पांचों एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए। क्या देखना था ये? सबसे पहले देखा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये देख लिया। मैटर आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी Tiny. Tiny. particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter attract each other. Each
सर आप एक बार 5th स्लाइड दिखा सकते हो क्या? कौन सी स्लाइड? 5th. 5th. Okay. Okay, sir. Thank you. हेलो सर। बोलो। सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क कनेक्शन था, अभी जस्ट लाइट आई और मैं पीसी पे हूँ ना, इसीलिए सर अभी तक क्या सिखाया आपने? We saw the 5 proofs of that. देखना 5 हमने देखे कि कैसे मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ओके सर, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग भेज दोगे ना सर? भेजेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। States of matter. Okay. How many states of matter are there? 3 3. 3. as per physical means। देखना क्या क्या है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड सर ये फिजिकल है ना, क्योंकि Physical. केमिकल वाले तो प्योर सब्सटेंस है वो है। ये फिजिकल मैटर्स है ना। हाँ. करेक्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, यस सर। ठीक है। यहाँ क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ो तो फटाफट से पढ़ो। 3 2 1, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। सर सर हैंड रेज करना है। 3 2 and 1। पटेल वेदांग। या तो स्टेट्स ऑफ मैटर से पढ़िए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज से। Properties of solids. First, solids have definite shapes and fixed volume. The space between the particle is minimum. The force of attraction between the particles is maximum. The movement of the particle is minimum. They are least compressible. The rate of diffusion is least. ये सब किसके लिए है? ये सब सॉलिड्स के लिए। Solids के लिए. They have definite shapes. Okay, fixed volume. Correct. Space between them is minimum, just like for iron we saw. And last is saying force of attraction between particles is Maximum. maximum. Okay. Maximum. And movement of particles is minimum because it's solid. Also they are what? They are least compressible. ज़्यादा compress नहीं कर सकते, compress नहीं कर सकते. They are least compressible. Next is saying that their rate of diffusion is Least. least. करेक्ट, मतलब डिफ्यूज, सॉलिड कभी डिफ्यूज होते हुए देखा है क्या? नहीं ना, नो राइट। बहुत अट्रैक्टिव रहते तो फिर सर उसको डिफ्यूजन करने के लिए जगह ही नहीं मिलती, इसलिए वो जगह पे ही डिफ्यूज होता है और थोड़ा थोड़ा ही डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज होना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। किसका ये? सर ये सॉलिड्स का है। सॉलिड है। हाँ, तो एक ही हमने इसका ये निकाला है, उसमें देखो ऐसा अरेंजमेंट है सॉलिड्स का। ठीक है, ओके सर। देख लो इसको फटाफट।
सर लिखा। हाँ सर, हो गया लिख के। ठीक है, जिसका बाकी है वो लिखो फटाफट, और आधा मिनट देता हूँ। ओके, डन। नाउ क्या करो, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो। ठीक है, टेस्ट ट्यूब। ओके, क्या कर लो, एक टेस्ट ट्यूब लो। ओके, तो आधा पानी इसमें भर दो। व्हाट यू डू नाउ, शुगर का एक क्यूब डाल दो इसमें। शुगर क्यूब डाल दिया इसमें, ठीक है। एंड शुगर डालने के बाद यहाँ से मार्क करो लेवल अप, कितना मार्क बाहर से। ओके, नाउ शुगर क्यूब जो है पानी में डिजोल्व होगा, और हाँ सर। डिजोल्व होने के बाद क्या दिखेगा आपको कि ये पानी का लेवल थोड़ा घट गया है, इतना आ गया होगा। ठीक है, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेवल क्यों घटा।
डिजॉल्व, वो बताना। लेकिन लेवल नहीं घटेगा ना, मतलब घटेगा मतलब नहीं level। जो एक्टिविटी देखी उसमें तो लिखा था कि लेवल तो वही रहता है। जो फर्स्ट एक्टिविटी थी उसमें लिखा था कि लेवल बढ़ती नहीं और घटती भी नहीं है। स्लाइट एकदम थोड़ा सा लेवल घटेगा, एकदम समझ में नहीं आएगा, बट लिटिल इट वुड बी ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी कम होती है। क्यों कम हो रही है स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर? बोलो। क्योंकि सर लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं ना, वो मतलब थोड़े थोड़े पार होते हैं, और सॉलिड्स के जो होते हैं ना बहुत कम्पैक्ट, तो वो दोनों रिएक्ट होके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होंगे। ओके, लेकिन लेवल घटने का क्या संबंध है इसमें? सर आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो? मैं बोला शुगर का क्यूब उसमें डालने के बाद क्या हो गया, उसका लेवल घट गया, है ना? सर शायद से जो मतलब जो ये हो गए मॉलिक्यूल्स शुगर में मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मतलब डिसॉल्व होते वक्त वो वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे, कुछ ऐसा। डिजॉल्व वाटर को कैसे अब्सॉर्ब करेंगे? नहीं सर मतलब कि वो वाटर के साथ मिक्स होगी तो फिर मतलब वाटर की जो लेवल है वो घट जाएगी। ओके, देखो पानी के बीच में कुछ स्पेस है कि नहीं अंदर का, है ना? हाँ सर। तो वो स्पेस थोड़ा क्या कर लेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा, करेक्ट है नहीं? तो जो खाली जगह था वो अभी भर गया ना उससे, करेक्ट। तो इसलिए जो लेवल था एक्चुअल वो घट गया अभी, okay, because the actual level which was there inside it has been occupied now. Okay, understood? हाँ सर। नहीं सर, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते मैं बोला कि जो एक्चुअल जगह था उसके अंदर का पानी का, वाटर में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है। तो क्या होता है, ये डालने के बाद, क्या डालने के बाद, शुगर डालने के बाद वो जो स्पेस रहता है अंदर का वो फिल हो जाता है शुगर से, है ना? तो बीच की खाली जगह वो भर गई ना अभी, तो भरने की वजह से क्या होता है, वो एक्चुअल स्पेस क्या होता है, कम हो जाता है उसका, इसलिए थोड़ा लेवल उसका नीचे को। The vacant space is between the particles of water. This vacant space is occupied by particles of sugar, and then therefore water level goes down. समझ में आया क्या? सर। सर फिर वो वाटर आइस क्यूब क्यों नहीं होता, वो सॉलिड में क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उसमें तो हम अभी वो उसमें अगर मॉलिक्यूल्स ऐड हुए तो सर वो रिजिड हो जाएंगे। सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए वाटर को फेस चेंज करना पड़ेगा ना, वाटर थोड़ी ना फ्रीज हो रहा है। सर आपने अभी बोला ना कि ये मतलब लिक्विड के साइड में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, उसमें वो सॉलिड के पार्टिकल्स फिल हो जाते हैं अगर हमने हाँ, लिक्विड में सॉलिड डाला तो सर वो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स फिट होते हैं ना, तो वो मतलब अगर ज्यादा ही नंबर में हुए तो फिर वो सॉलिड क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर ज्यादा नंबर में रहा तो वो पूरा मतलब बहुत मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और वो रिजिड हो जाएंगे, फिर वो मूव नहीं कर पाएंगे। मूव नहीं कर में, ठीक है ना? ज्यादा तो एक क्यूब ही डाल रहे हैं ना, हम थोड़ी ज्यादा डाल रहे हैं, कुछ क्यूब ही डाल रहे हैं ना। समझ में आएगी मेरी बात? ज्यादा कुछ हाँ सर। डालेंगे तो गाढ़ा हो ही जाएगा, पानी में आपने कुछ डाल दिया, समझो गाढ़ा कुछ, तो वो मूव करेगा क्या? नहीं करेगा ना, वो वैसे का वैसे रहेगा, गाढ़ा बन जाएगा। ओके, अब जैसे पानी सर में तुमने डाल दिया, टमाटर का पेस्ट डाल दिया, तो क्या गाढ़ा हो जाता है कि नहीं पानी? लेकिन वो फ्रीज नहीं होगा, बर्फ थोड़ी बन जाएगा, वो टेम्परेचर कम करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है? अंडरस्टूड?
हाँ सर, मतलब जैसे टोस्ट अगर हमने पानी में डाला तो वो गाढ़ा हो जाता है। टोस्ट पानी में डाला, हाँ यस करेक्ट, वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है सर, समझा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन हैज? सर हम्म सर लेकिन हम जब शुगर मतलब कोई भी पानी में अगर हम जब कोई भी मतलब ज्यादा थोड़ा वेट है उसका ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो पानी का लेवल राइज होता है ना? हाँ राइज होता है, लेकिन ये उसमें डिजोल्व होके अंदर का जगह फिलअप कर रहा है। तो लेकिन हम इसे मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, देखो अभी आप कभी कभी क्या करना है, आप इसको सूटकेस में कहीं बाहर जाना है आपको, ठीक है, हाँ सर। गांव को जाना है, और सूटकेस में क्या है, कपड़े डाल के रखे, तो दिख रहा है क्या, भरा हुआ है सूटकेस, है ना, ठीक है, तो बाहर से देख रहे हो तो सूटकेस भरा हुआ दिख रहा है, जगह नहीं है, लेकिन जगह कैसे करोगे उसको, है ना, उसको दबाते हैं ना, उसको ठूसते हैं उसमें, करेक्ट, हाँ क्या सर। करेंगे, उसको मार मार के उसमें जगह बनाते हैं हम लोग उसमें, और और भी सामान उसमें ठूस देंगे, करेक्ट, ठीक है। आप बोलोगे अभी तो और सामान डाल रहे, जगह तो और बढ़ना चाहिए, नहीं, ऑलरेडी स्पेस है ना अंदर उसके, समझे? हाँ सर। सर बोलो। नहीं सर, पूरा सन्नाटा हो गया तो मैं सोच रहा हूँ मेरा कुछ नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया क्या सबने? Okay, now just like property of solids were there, now we are seeing properties of liquids. Okay, तो क्या लिखना है यहाँ पर, जो ऑल्सो प्रॉपर्टीज यू ऑलरेडी नो, तो ये थोड़ा सा अभी सॉलिड के कंपैरिजन थोड़ा सा कम है ये, ठीक है, दे हैव नो डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, टेक शेप ऑफ कंटेनर, स्पेस बिटवीन देम इज लेस देन सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, है ना, तो लिक्विड्स का जो भी प्रॉपर्टी वो सॉलिड और गैस के बीच करेगा, एंड दे आर कंप्रेसिबल, देयर रेट ऑफ डिवीजन इज मोर देन सॉलिड्स। ओके, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, इसको लिख लो आप। सर बोलो। सर यहाँ एक इंटरमीडिएट मतलब वर्ड लिखा है, उसका मीनिंग क्या है? बीच में। सर सेकंड थर्ड और फोर्थ इसमें लिखा है ना, लास्ट वर्ड। हाँ बीच में, सॉलिड्स और गैस के बीच में। ओके सर। Sir, can you repeat what is the meaning of intermediate here?
which is in between solids and gases. Okay. Sir, rate of diffusion मतलब कितने स्पीड से डिफ्यूज हो रहा है, कितने स्पीड से मिक्स हो रहा है वो, okay. हो गया सर, लिख के। इतनी जल्दी? ठीक है। हाँ सर। सर 1 मिनट रुको, मेरा बाकी है। लिखा है। Okay, done now. ठीक है। Yes, sir.
प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस सेम थिंग ना. क्या हो रहा है गैसेस में? हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम. करेक्ट. होता है क्या? शेप कुछ नहीं. और गैसेस आल्सो ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द कंटेनर, राइट. Force of attraction is minimum, movement of particle is maximum. They are the most compressible. Their rate is more than solids and liquids. Okay. So simple thing. Liquid में सब चीजें क्या है? कम है. गैस में सब चीजें क्या है? ज्यादा है. Okay. Like that. सर गैसेस में काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट Highest रहती है. Correct. Kinetic theory is the highest. सर क्या है काइनेटिक थियोरी? काइनेटिक एनर्जी बेटा, पता है तुम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सर क्या है काइनेटिक थ्योरी? फिर से बता. अरे काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी मतलब एक सर मुझे लगता है उसको काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं. सर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? whenever particle is in motion, whatever energy it has, करेक्ट, जो पार्टिकल मोशन में उसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. इन स्पीड बेसिकली, काइंड ऑफ. ओके, है ना. तो व्हाट इज काइनेटिक? अरे आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना काइनेटिक एनर्जी. नहीं सर सर. 7th में पढ़. बताओ क्या है काइनेटिक? किसको पता है काइनेटिक एनर्जी? बताओ. सर हमें सिखाया ही नहीं. तुमने बंक मारा होगा, सब सिखाया है तुमको. सर आदि मेरा फ्रेंड है और और जहां तक मैं उसको जानता हूँ वो कभी बंक नहीं मारेगा. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. लेकिन पर काइनेटिक एनर्जी बचपन में पढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं? ठीक है, वो ठीक है, बाद में मजाक कर रहा था. लेकिन जिसको पता है काइनेटिक एनर्जी वो बता सकता है. चारुल बताओ. सर पढ़ा है, पता नहीं, पढ़ा है पर पता नहीं. वाह क्या बात है. भूल गया. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली व्हेनेवर पार्टिकल इज इन मोशन, मतलब व्हेन इट्स moving, है ना, and the energy possessed by that energy is called as the kinetic energy, है कि नहीं? And when the particle is in rest, that energy is called as what? Potential energy. Correct ना? Yes, sir. Okay. सर काइनेटिक एनर्जी का एक एग्जांपल बताओ. तो क्या है काइनेटिक एनर्जी? या आई विल टेल ना. मोशन में आने की वजह से कुछ एनर्जी है उसको. अभी जैसे है ना, मैंने क्या लिया, एक टेनिस बॉल लिया, ठीक है, लेकिन आदि आदि हाँ सर. टेनिस बॉल लिया और तुम्हारे सर के ऊपर रख दिया, तुमको लगेगा क्या? हाँ. सर पे रख दिया, मारा नहीं, नहीं लगे. नहीं लगेगा, ठीक है. लेकिन वही बॉल में जोर से दूर से पूरा ताकत लगा के तुम्हारे सर के ऊपर मारूंगा, लगेगा कि नहीं? हाँ. क्यों लगता है? क्योंकि सर वो बॉल आपने जोर से फोर्स से फेंका. फोर्स से फेंका है ना. फोर्स से फेंका है और उसमें एनर्जी आ गया है अभी, है ना. तो दैट इज द एनर्जी ऑफ दैट मास ऑफ बॉल विच इज इन मोशन. दैट इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट बॉल नाउ. ठीक है. बट सर वो तो हम पे डिपेंड करेगा ना, हमने कितना न्यूटन फोर्स मारा है. हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी में वेरी डिपेंड्स. इसलिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्पीड. More the speed, more is the energy, like that.
अंडरस्टूड? सर काइनेटिक एनर्जी का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या कौन सा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या अभी? मतलब जैसे प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, जितने ज्यादा प्रेशर उतना कम एरिया, वैसा? नहीं, जितना काइनेटिक ज्यादा एनर्जी काइनेटिक फोर्स उतना कम वो चीज, ऐसा कुछ नहीं है नहीं, क्या? ऑलवेज इट्स डायरेक्टली मोर द मास, always directly proportional. More the mass, more is kinetic energy. More is the velocity, more is the kinetic. So kinetic But distance will be inversely proportional, right? distance कुछ लेना देना नहीं distance का. Kinetic energy is dependent on mass and velocity. That's all. Okay. ठीक है. हाँ यस सर. They're saying that the rate of diffusion is more than solids and liquids. Okay. Yeah. Now what we want to see is that okay. आगे बढ़ते हैं. है ना? तो गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, सब कुछ है अपने पास, राइट? स्पेसेस देखो, इसमें कम है, ज्यादा है और इसमें बहुत ही ज्यादा है. यहाँ पर भी देखो, सॉलिड्स का बहुत ही कम है, लिक्विड का थोड़ा कम है और गैसेस का बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, तो कर लो इसका स्क्रीनशॉट निकालो. ठीक है, Hello, sir. इसका इसका निकालो स्क्रीनशॉट. मैं बोलता हूँ फर्स्ट टू डू दिस. हाँ सर, हो गया. सर हमें इसका निकालना है स्क्रीनशॉट. ये ड्रॉ करना है क्या? हाँ. ओके. Okay, सर ये sir. ड्रॉ करना है क्या? ड्रा नहीं, क्यों करो ड्रा, स्क्रीनशॉट निकालो. ओके सर. कुछ आएगा आपको? हाँ सर. करो जल्दी, 2 मिनट में चालू करो. हमें जिसका नहीं हुआ उसका गया वो. हा 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 हा. हा, 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 हा. मैं चालू कर रहा हूँ. ठीक है, सर 2 मिनट. सर 2 मिनट. सर एक्चुअली मतलब मेरा नेट अब बहुत इम्प्रूव हो गया, मैं 2 मिनट में अब ज्वाइन हो सकता हूँ.
हाँ सर मैं ज्वाइन हो गया, दिख रहा हूँ ना मैं आपको। सर एक सेकंड रुको ना प्लीज। हेलो सर। बोलो। सर मैं आपको दिख रहा हूँ ना? तुम्हारा वीडियो बंद है, कैसे देखोगे तुम? नहीं मतलब इस पे प्लीज में मेरा नाम दिख रहा है। नाम हाँ वेदांत। एक ही जन है ज्वाइन हुआ है। सर ये कुछ तो प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। हटाओ पॉलिसी को। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 2 1 स्टार्ट। हाँ सर अब वो बफरिंग आ रही। सर आपने स्क्रीन शेयर किया है? नहीं। सर ये आ रहा है कि वेटिंग फॉर प्लेयर स्टार्टिंग सून 12 मिनट्स 10 सेकंड्स ऑफ इट, उसे दिखा रहा है। हम्म हम्म चलो 8 लोग आ गए अभी। सर वेटिंग फॉर प्लेयर्स ही दिखा रहा है। हाँ भाई। मुझे 11 मिनट दिखा रहा है। सर मुझे भी ऐसा ही दिख रहा है। The quiz will start in 11 minutes 40 seconds. अरे सर ने अभी नहीं। स्टार्ट ही नहीं किया है क्विज। हाँ हाँ ना, पर 11 मिनट्स क्यों दिखा रहा है फिर वो? ठीक है मैं हाँ स्टार्ट चेक किया होगा। सर कर दो स्टार्ट, देखेंगे क्या होता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है 8 ही लोग आए लेकिन बाकी लोग किधर है? सर वो प्राइवेट पॉलिसी करके कुछ तो दिखाई दे रहा है। बाकी लोग 8 ही लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? सर हम्म, सर आप स्टार्ट कीजिए ना। अरे बाकी लोग को ज्वाइन होने दो। किधर है सब लोग? सर पता नहीं वो पेज लोड नहीं हो रहा। बोलो चालू। मैं स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है 3 2 1। हाँ जिसको नहीं हो रहा है वो स्क्रीन पे देख के सॉल्व करे। सर फिर सर डिफ्यूजन है ना? करेक्ट ना, डिवीजन है। पहला वाला इफ्यूज लिखा है मैंने, दूसरा वाला डिफ्यूज लिखा है बराबर। अच्छा
सर बोलो। सर मेरे यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटरनेट अनस्टेबल है। और सर फर्स्ट क्वेश्चन में वो सॉलिड लिक्विड और फिर गैस चाहिए ना, उसमें गैस लिक्विड और फिर सॉलिड क्यों दिखा है? कुछ भी रहे, मतलब फर्क क्या पड़ता है उससे? सर फर्स्ट क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ता है उससे? सर पढ़ता है क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। सर आयन और ब्रोमाइन दोनों ही सॉलिड है, फिर क्या करना? हाँ सर। ब्रोमाइन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड में ठीक लिक्विड है है। ना, वो रहने दो ना। स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है किसमें? ब्रोमीन है लेकिन वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल थोड़ी उसमें। सर ये क्या है मतलब? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हाँ पर सर ये हमें पता नहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, करो ना। सर गलत आया तो? गलत आया तो गलत, सबका ही गलत आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो?
Hello, sir. सर हेलो सर। Hello, sir. सर कुछ क्वेश्चन के आंसर पता ही नहीं थे। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे जिसका आंसर पता सर नहीं। आप पहला क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? अब हो गया ना, कैसे दिखाओ उसको? नहीं मतलब वो दिखता है क्या? मुझे उसमें डाउट था इसलिए। ठीक है, तो डजंट मैटर वेदर क्वेश्चन यू डोंट नो और बट सर बट एटलीस्ट कुछ सीखने तो मिलेगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? हाँ, वो पहले वाले को बोल रहा हूँ। हाँ सर। सर उधर डी आना चाहिए ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब। ओके समझा सर, गॉट इट। इंक्रीजिंग मतलब जिसका सबसे लोएस्ट है उससे हाईएस्ट तक, मतलब हाईएस्ट सॉलिड होता है फिर लिक्विड और गैस, तो इधर गैस लिक्विड सॉलिड चाहिए था। ओके करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक ठीक यू है, सर। सर ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था पर मेरा मतलब हुआ ही नहीं क्योंकि जल्दी 2 सेकंड बचे थे और मैं ज्वाइन हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, so we'll stop now today. Those who have classes, they can go. यस सर, बाय सर, थैंक यू सर। Okay, बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank Thanks. you, sir. Have a great day ahead. bye. बाय सर, टेक केयर, थैंक यू।